Hello, Kaushik. Yes, sir. How are you? All okay? All okay, sir. Okay. Where are you based, Kaushik? I'm from Kolkata, sir. Kolkata. Okay. So you are appearing in Kolkata MMD. Yes, sir. I'm appearing in Kolkata only. Okay. Okay. Let's wait some time for Raghav and then we can start. दिलीप Okay, यस sir. सर। एक बार कंफर्म करेंगे राघव के साथ इजी ज्वाइनिंग। हाँ सर, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ कौशिक, कोलकाता में वेयर आर यू स्टेइंग? Kolkata, I'm staying in this Pannusri. Okay. So is your home in Purnashree or you are there for studies only? No, no, no. My home is little far away from this. My whole home is near Haldia. I'm staying in this room, my Okay. friend house. Okay. Okay. How's Purnashree now? All okay. राघव वही फोन नहीं उठा रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, Now तो it फिर is हम लोग okay. स्टार्ट Weather करते हैं। also good. ठीक है दिलीप, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ सर। ओके। या आई हैव बीन टू Purnashree, so I know little bit places there. Okay, sir. Hmm. But this time is good because of weather is good now. Hmm. Up to February it will be okay, but after February, so condition will come. Too much humidity Yes. and rainy. Like that. Yes. Yes. But it is a nice place. I mean, you get all the Xerox materials. Rajesh Xerox, right? Yes, sir. Still he is there. Still he is there. Okay. So just ask him that the latest notes, question answer notes, do you have? Ask him for that. Okay. Okay, sir. Yeah. I have for the motor Already you have. Okay. for Sarkar sir and Biswas and Paul. Yeah. Yeah. So one tip before starting the class, I will give you that keep studying, and it is better to join some discussions. So you have your friends at home or nearby. So you go with them every day, maybe, or not every day, every alternate day, maybe for 1 hour, and you discuss with them. So there will be an indication that you will get that you are getting prepared for the exam. So how you will get the indication? They will come out with many new questions. In the beginning, you will not be able to answer anything. Okay. So as you proceed in the topic, then you will see that, slowly you are able to answer most of the questions. That is where you should go and appear for the exam. That is the indication. Okay. So that discussion is very important. Without discussion, you will not remember anything. Yes, sir. Yeah. Okay. So we will start with our dry dock topic today. I will start by sharing my screen. Hold on. Recording in progress.
Can you see my screen? No, sir. Okay. All right. Still not, huh? Okay, I'm sharing now. How about now? Yes, sir. Now I can see. Okay, okay. So, before we start the dry dock topic, I will tell you that I'm not in favor of giving any study materials unless it is really required. And whatever study materials that I will give you, it is authentic, verified from somebody. Okay, it could be either from MAN or any maker, manufacturer, or it could be a YouTube video which has been verified. Only those links I will provide you. The other links don't even bother, because even in your hard drive you must be having 20 GB of study material, but unless you understand that 20 GB, nothing works, right? So what our intention is not to provide study material, it is to provide you the understanding of the study material. Either you bring it or I will provide you. Both ways we will work. Yeah. Yes, sir. Okay. So have you been to a dry dock? No, sir. I have not been to a dry dock. Okay. So um, the reason why we are going to the dry dock that we discussed yesterday, right? The actual reason. Apart from that particular reason, which is regulatory, okay, it is a class regulation that we saw yesterday. And okay, this is what he is saying is a class regulation that you must be going to the dry dock at least 2 times in a year, out of which one dry dock can be replaced by a floating inspection. Okay, so on board you must have heard this U-Wild survey. Yeah. Sometimes you get a mail from the office saying, okay, U-Wild survey is being conducted. What is U-Wild survey? It is the underwater inspection. Okay. That is U-Wild. Underwater inspection in lieu of the dock. That is the complete abbreviation of that. Okay. So now we know that we have to go to the dry dock once in 5 years. But this regulation is not for all the vessels. This regulation is only for cargo vessels. What about passenger vessels? The passenger vessels, they need to go to the dry dock every year. So that is the regulation for the passenger vessels. So irrespective of the fact where they are and how they are, they will go to dry dock every single year. Okay. So that is the regulation. And when you go to the dock, just hold on. I'm getting a call. Hold on.
Okay, can you hear me? Yes, sir. Okay. So where were we? So passenger ships are going every 1 year. So whenever a dry dock is planned, okay. So the jobs for the dry dock, when you start planning for the dry dock, when is the right time to plan for the dry dock? Any idea? No, sir. Just a guess. But it's I been will right. ask you to do many guesses because I want you to speak. अगर सिर्फ मैं ही बोलूँ तो फिर वो क्लासरूम टाइप हो जाएगा यार. वी आर हियर फॉर अ डिस्कशन. सो ओपन अप. गलती भी है तो प्रॉब्लम नहीं है. कुछ भी बोलो लेकिन बोलो. गलत हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं. उसको ठीक करेंगे. हम्म. Right. To तो इफ अ शिप इज गिवन टू यू, देन क्या टाइम रहेगा कि आप ड्राई डॉक के लिए प्रिपेयर करना शुरू करोगे? लेट्स से यू आर द सुपरिटेंडेंट. भूल जाओ एग्जामिनेशन वगैरह सब भूल. कितने दिन पहले प्लानिंग शुरू करना चाहिए? sir, minimum, sir, 3 or 4 months before we have to plan for the dry dock, or ओके. 6 months, because we have to book for the dry dock, mm, for the dock. Its dock availability is there or not. राइट. We have to check for the date. करेक्ट. How many days docking we need to done for that? We have to prepare. On behalf of this, how many days ship will be laid down on the dock? So we need to contact to the charter if ship is under the seas voyage charter or time charter. Correct. So we need to off fire this ship for the dry dock. Those kind of thing we need on the perspective of superintendent view. We'll check, and after that we follow up the procedure whatever preparation to need to be carried out for the Right. ship staff before entering the dry dock. Right. What all work to be done, any Right. modification required or not. For that we need to contact the surveyor availability. Right. Okay. See, you knew this much of answers, but पहले पूछने पे क्या बोला नहीं पता. भाई इतना पता है तो इतना तो बोला ना अभी. वो तो मैंने कोई हेल्प तो नहीं किया. So that is why I'm saying open up. When you open up, say X, Y, Z, say anything. This will help you in the exam. अभी whatever points you have spoken is right. None of the points are wrong. But dry dock प्रिपरेशन जो है ना, वो कभी शुरू करते हैं जैसे ही आपका ड्राई डॉक खत्म होता है, अगले दिन से दूसरा ड्राई डॉक का प्रिपरेशन शुरू हो जाता है. सो 5 साल में मान लो एक बार डॉक जा रहा है, ठीक है. तो डॉक खत्म हो गया, आप सेल आउट करके निकल गए, सी ट्रायल हो गया, सब कुछ हो गया, यू आर ऑन अ वॉयज. दैट इज द टाइम. जैसे ही आउट ऑफ डॉक, यू विल स्टार्ट मेकिंग योर डिफेक्ट लिस्ट फॉर द नेक्स्ट डॉक. क्योंकि मान लो 5 साल में एक बार होता है, कितने बार क्रू चेंज होगा, सबको सब कुछ याद थोड़ी रहता है ना. सो रिमेंबर, हम रहे ना रहे, सिस्टम रहना चाहिए. तो सिस्टम क्या है? आपका एक ड्राई डॉक मॉड्यूल होगा आपके प्लान मेंटेनेंस सिस्टम में, ठीक है. सो पीएमएस में एक ड्राई डॉक मॉड्यूल रहता है. अगर वो नहीं है तो सुपरिटेंडेंट के पास जरूर रहता है. सो एज सुन एज द वेसल इज आउट ऑफ द ड्राई डॉक एंड ऑन अ न्यू वॉयज, कितना भी डिफेक्ट आता है, ठीक है, वो ओवर अ पीरियड सारा कुछ कलेक्ट करके नेक्स्ट डॉक के लिए कर देते हैं. अनलेस इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि अरे इसके बिना चल नहीं सकते, तब तो उसको करना पड़ेगा. बट अदरवाइज डॉक के अगले दिन से नेक्स्ट डॉक का प्लानिंग शुरू हो जाता है. ओके. सो बहुत लोग बोलता है 6 महीना पहले, 1 साल पहले. नहीं, अगले दिन से. दैट इज द राइट आंसर. या Okay, sir. Yes. सो अभी हम जब डॉक जाते हैं, सो बेसिकली वी आर चूजिंग, देर आर 3 टाइप्स ऑफ डॉक्स इन दी ओल्ड वर्ल्ड, ठीक है. तो एक है ग्रेविंग डॉक, ठीक है. एक है फ्लोटिंग डॉक, ठीक है.
एक है, एक और है जो रेल पे चलता है, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। So I will send you the link of the video also. So ग्रेविंग डॉट क्या होता है? ग्रेविंग डॉट कुछ ऐसा दिखता है, देखो। ये देखो, ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, ठीक है, दिस इज अ ग्रेविंग डॉक। ये क्या किया है, यहाँ पे एक गेट है, ठीक है। ये लोग क्या करता है, ये जो गेट है बाहर का पानी अंदर नहीं आने देता है। ओके, सो देर इज बेसिकली समथिंग लाइक दिस। ये लैंड है, ठीक है, और लैंड में गड्ढा खोद देते हैं ऐसे। जहां पर भी डाउट हो स्टॉप मी। ओके, लैंड में ऐसे गड्ढा खोद देते हैं, और यहाँ पे एक हमने गेट बना दिया। ओके, यहाँ पे हमने एक गेट बना दिया। दिस गेट कैन मूव अप एंड डाउन, or it can slide left and right. Both the combinations are there. It can move like this to open and close, okay, or it can move like this to open and close, okay. So यहाँ पे गेट है, okay. Where is the water level? Water level अपना यहाँ पे है. This is the water level, okay. So देखो यहाँ पे water level यहाँ पे है, correct. This is your gate, ऐसा, okay. Yes, sir. और क्या होता है, नॉर्मली दिस डॉक इज ऑलवेज फिल्ड विथ वाटर, ठीक है। जब ही अपना जहाज आता है तो हाउ टू डॉक द वेसल, ठीक है। तो क्या करते हैं वो टाइम पे, ये गेट को ना आइदर ऊपर स्लाइड करके या लेफ्ट राइट में स्लाइड करके इसको खोल देते हैं, ओके। सो ऑल द वाटर, इट एंटर्स द डॉक, एंड द डॉक इज कंप्लीटली फिल्ड अप विथ वाटर। और जब वेसल आता है वो इस लेवल पे रहता है, ठीक है। ड्राई डॉक जो है सी, क्योंकि जहाज तो फ्लोट करके आता है ना, राइट, इनसाइड द Yes. डॉक। So once it is inside, this gate is closed and all the water is pumped out. So as the water is pumped out, ठीक है, ये क्या होगा, ये नीचे जाना शुरू होगा, और यहाँ पे पहले से ब्लॉक लगा के रखा हुआ है बहुत सारा, ओके। ऐसा 2-3 सेक्शन में ब्लॉक लगा के रखा हुआ है, ओके। और ये आके इस पे बैठ जाएगा। Once everything is pumped out, your vessel is completely sitting on the blocks, okay. You must be already knowing, but since you have not been to the dry dock, तो एक जस्ट एक पिक्चराइजेशन, ठीक है। Yes, sir. Clear, sir. Hmm. This one. So this one is called the graving dock, okay. So it is like a grave, okay. Okay, तो ये कब्र जैसा है जिसको खोद दिया गया है, इसीलिए इसका नाम है ग्रेविंग डॉक, ओके। नाउ दूसरा आता है फ्लोटिंग डॉक, ओके। नाउ इमेजिन, ये जो ग्रेविंग डॉक है इसका एक शॉर्टकमिंग है। शॉर्टकमिंग क्या है कि पहले तो इसको ओपन करो, जहाज को अंदर घुसाओ, क्लोज करो, इट इज अ लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग। ऑल्सो यू हैव टू डिग अ ग्रेव, ओके। और इतना ही नहीं, अंदर से तो एक्सेस वैक्सेस भी देना पड़ेगा ना, जहाज मतलब यहाँ से लैडर वैडर होता है यहाँ से इधर आने के लिए, ऑल द लैडर्स आर प्रोवाइडेड, ऑल द एक्सेस इज प्रोवाइडेड, एंड व्हाट नॉट, एवरीथिंग एल्स इज प्रोवाइडेड, ठीक है। तो ये इसमें कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ओके। एंड अनदर मेजर माइनस पॉइंट ऑफ द ग्रेविंग डॉक इज दैट एक बार जहां गड्ढा खोद दिया, जहाज को वहां पे आना पड़ेगा, ओके। मान लो कोई जहाज नहीं आ सकता है, तो ड्राई डॉक उसके पास जा सकता है क्या? No, sir. वेल, जा सकता है। This graving dock will not go. ग्रेविंग डॉक विल नॉट गो,
floating dock can go. That is the reason why the floating dock was invented. ठीक है, जैसे कोई जहाज है, उसको डॉक करना है. सो लेट्स से दिस पर्टिकुलर ड्राफ्ट, यहाँ पे जो डेप्थ है, ये इनफ नहीं है वेसल को आने के लिए, तो ग्रेविंग डॉक तो मूव नहीं कर सकता है. लेकिन ये देखो, ये है फ्लोटिंग डॉक यहाँ पे. ओके, ये फ्लोटिंग डॉक है ना, आइदर इट इज सेल्फ प्रोपेल्ड और मतलब इसको अम, किसी टो करके यू कैन मूव इट. इसका मूरिंग वूरिंग किया हुआ है यहाँ पे, राइट. एक मिनट. ओके, सो दिस इज फ्लोटिंग डॉक. फ्लोटिंग डॉक कैसा रहता है? इट इज अ शिप ओनली, ठीक है, और कॉल इट अ बार्ज. वो कैसा रहता है? ऐसा रहेगा. ओके, और इसके साइड में बलास्ट टैंक्स रहते हैं, ठीक है. ये बलास्ट टैंक्स है. अभी पानी का लेवल कहाँ है? पानी का लेवल यहाँ पे है. ओके, नाउ यू हैव टू ब्रिंग द वेसल इन. कैन यू ब्रिंग द वेसल इन लाइक दिस? Sir, we need to go down more, then only vessel will come. यस एग्जैक्टली. सो यहाँ पे इसके लिए ये बलास्ट टैंक्स दिया है. यहाँ पे बलास्ट टैंक्स है. सो व्हेन यू बलास्ट, ये जो पूरा अरेंजमेंट है, ये बार्च वाला, इसका पानी यहाँ तक आ जाता है एक्चुअली. वाटर लेवल राइजेस, सो इट कंप्लीटली सिंक्स अंडर वाटर. तब क्या होता है? जहाज यहाँ पे आता है. ओके, अब क्या होता है? डीबलास्टिंग शुरू होता है. जब डीबलास्टिंग शुरू होता है, ये और यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है ना, तो ये जहाज को लेके ऊपर ब्लॉक पे ले लेता हूँ. इज दैट क्लियर? Yes, sir. या, एक मिनट होल्ड. अरे यार. यस चीफ, व्हाट इज द इशू? Yeah, so those things have been provided, no? I mean, you already have the short term. Yeah. What is ETA? Hmm. No, no, no. See, what I'm saying, it is a Sika. Yeah. Rather call it Ika. So, irrespective of the fact that you are at the anchorage or not, I understood. I saw the message from the agent. See, he has not explained everything in that. Let me tell you. Uh, See, you are allowed to enter with 0.5. Okay. You are allowed. Yeah, that is right. But then, if you are staying at the anchorage for more than 2 hours, which you will stay anyway, you need to change to 0.1. That is the requirement. I have confirmed. Yes. Yes, yes. I'll forward you that mail. It's from the harbor master. Yeah. So, irrespective of that, yes, that's right. Because it clearly says when you are maneuvering to the pier, you must be changing over to 0.1. So it doesn't matter where you change and come or you come and change. So it is safer to change and come. I would strongly suggest that. Log it down, quantities, and timings. Okay, okay. I am not sure because the doc has not yet replied. So I will be there on 20th, let's say. That is what I'm planning. And yeah, yeah. No, no, no. See, you have to go by the trim. They have mentioned the trim.
and preferably with all the bunker tanks empty as much as you can, because we don't want to debunker. So you need to consume it. The tank conditions they have given. No? Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Acha, what happened to that JRCS? Yeah, I suggest better not switch it off once we have the service attendance. Yeah, that is the right time, because because we don't know the PM test will work out. Yeah, keep it that way. Yeah. Well, last time what happened when we switched off, I almost had to get a dispensation, and somehow. Yeah. Okay. You got you. Yeah. Okay. You got a good handover? Are you satisfied? Yeah. Let me know. Okay. All right. Chalo, see you. Okay, Kaushik. So where are we? Can you hear me? Unmute करना Yes. पड़ेगा. अच्छा, you can hear me. Okay. Sir, what asking was this floating dry dock. हाँ, floating वाला. That deballasting, it will come on the shit on this block, kill block. Yes, correct. So ये क्या है ना, फ्लोटिंग डॉक ऐसा बना देते हैं बलास्ट टैंक के साथ. इसको बलास्ट डिबलास्ट करो, नो ग्रेट साइंस, तो जहाज ऊपर नीचे होता रहेगा. सिंपल, राइट? Yes, sir. ओके. नेक्स्ट. अरे यार, इसको बंद कैसे करते हैं? So he's talking about the floating type dock. Is the same explanation. Okay. Then there is a dock. See, this is the floating dock. So these are the ballast tanks, you can see. Okay. So this goes up and down. It is very simple. Okay, sir. Then this is also a question for the MMD. So if I ask a fourth engineer again, how will you prepare for the dry dock? वो बोलेगा tools, spares, stores, ये सब लेकर रखो. Because that is what he can think of. सारा tools है, सारा store spares सब आ गया. अभी you should have a proper planning. तो planning कौन करेगा? So that you and chief engineer had to sit and do that job. Okay. So in the planning part, there are two things, actually three things, which are very, very important. सबसे पहले जॉब स्पेसिफिकेशन. ठीक है, तो जॉब स्पेसिफिकेशन आता है. तो जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या आता है? ओके. ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है? कैन यू चेक? कौशिक? Yes, sir. But while they signing in, they're saying there's a recording in progress. हाँ, तो ओके है, बिकॉज यू कैन रेफर टू इट लेटर, इसीलिए पूछा. ओके. सो जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या आता है? आई विल पुट इट एज JS. ओके. तो जॉब स्पेसिफिकेशन में तीन चीज होता है. एक होता है रिपेयर. ठीक है, ऑल द रिपेयर जॉब्स. ओके. देन देर आर सम स्टैंडर्ड जॉब्स. when you go to the dry dock, you always do that, irrespective of the fact करना है या नहीं करना है, वो सोचना ही नहीं है. ये काम तो डॉक में करना ही है. ठीक है. सो देर इज अ रिपेयर जॉब, देर इज अ स्टैंडर्ड जॉब. ओके. देन द थर्ड टाइप ऑफ जॉब is unexpected. Suddenly you think of some requirement when you go to the job. When you go to the dock, then you, अरे यार ये भी करना है, इसको कर देते हैं. ओके. सो ये हो गया जॉब्स, थ्री टाइप्स ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन.
So for any engineer, okay, और any superintendent, सबसे दुखदायक कौन सा होता है इसमें? Unexpected job, sir. Correct. Because repair job we are planned for this whatever machinery we and repairing job. And Right. standard job will come under the source staff, either ship staff or either dockhead people. At the time of docking, any unexpected job is come that will be difficult. Correct. Because everything else you have planned. Okay. अब जो अनएक्सपेक्टेडली आ गया इसको कोई तो बर्डन लेगा ना. Yes, sir. हाँ, मेरे को पैसा खर्चा करना पड़ेगा. आई विल नॉट बी हैप्पी. Yes, sir. एंड आपको काम करना पड़ेगा. यू विल नॉट बी हैप्पी. आइदर वेज. सो द होल आइडिया ऑफ प्लानिंग ए ड्राई डॉक इस चीज को जीरो करो. अंडरस्टैंड? Yes, sir. सो ड्राई डॉक का प्लानिंग का मतलब ही ये है कि आपका जो रिपेयर स्पेसिफिकेशन है वो तो आपने जॉट डाउन कर लिया है. जो स्टैंडर्ड जॉब्स है वो स्टैंडर्ड है, वो तो होना ही है. इट इज़ प्लान्ड. जो अनएक्सपेक्टेड है दैट इज़ द पेनफुल पार्ट. तो योर अटेम्प्ट शुड बी टू डू अ वेरी गुड प्लानिंग. ठीक है. सो यू कैन नेग्लेक्ट दिस अनएक्सपेक्टेड जॉब. ठीक है. तो ये एक चीज है. अपार्ट फ्रॉम जॉब स्पेसिफिकेशन देर इज वन मोर थिंग विच इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी सर्वे. ओके. कुछ लोग इसको रिन्यूअल सर्वे भी बोलते हैं. ठीक है. कोई उसको डॉकिंग सर्वे बोलता है. ठीक है. बट द वर्ड इज नॉट करेक्ट. डॉकिंग सर्वे इज नॉट द राइट वर्ड. what you need to do is, this is the best term and the most authentic term that you should use, renewal survey. ठीक है. तो ये आपका जॉब्स तो होता ही है, साथ में सर्वे भी होता है. ठीक है. इसके अलावा क्या होता है? सो स्टैट्यूटरी सर्वेस में, रिन्यूअल सर्वेस में क्या होता है, जितने आपका सर्वे ड्यू है 5 साल में जो भी आ रहा है ना, फायर डिटेक्टर से लेके एंकर से लेके एंड व्हाट नॉट, 1,000 सर्टिफिकेट्स रहते हैं, सबको रिन्यू करवा दिया जाता है. IOPP, IAPP, मार्पोल, सोलार, जितने सर्टिफिकेट्स हैं सब रिन्यू हो जाते हैं. ओके. सो यू आर अप एंड रनिंग अगेन. सो दैट इज द पर्पस ऑफ रिन्यूअल सर्वे. रिन्यूअल सर्वे का बहुत लोग मतलब समझता है कि अरे कुछ रिन्यू करने का है, मतलब दे थिंक इन टर्म्स ऑफ स्टील प्लेट या फिर सम हल मॉडिफिकेशन, ऐसा सोचता है. बट रिन्यूअल सर्वे इज बेसिकली द सर्टिफिकेट्स. ठीक है. इट इज नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग फिजिकल. ठीक है. वो सर्वे करेगा, लोड लाइन सर्वे करेगा, सब कुछ करेगा, एंड देन ही विल इशू अ सर्टिफिकेट, एंड दैट सर्टिफिकेट्स आर वैलिड फॉर 5 years. ठीक है. तो वो एक चीज है. द थर्ड थिंग जो कि ड्राई डॉक में इंपॉर्टेंट होता है इज द सेफ्टी. ठीक है. इट मे लुक वेरी सिंपल, लेकिन बहुत बार क्या होता है, इफ यू आर नॉट मीटिंग द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, द ड्राई डॉक विल रिजेक्ट यू. वो बोलेगा तुम आओ ही मत, 2 दिन बाहर खड़ा रहो एंड पूरा अपना जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है वो करके आओ. ठीक है. सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में आपका होता है टैंक कंडीशन से लेके जहाज कैसे आना चाहिए. दे बेसिकली गिव यू द होल, ये क्या उसको बोलते हैं, प्लानिंग, कि क्या स्टेट में आपको आना है, क्या ड्राफ्ट में आना है, क्या ट्रिम में आना है ना, कितने बजे आना है, एंड यू शुड हैव अर्थिंग कनेक्शन या नहीं, व्हाट इज योर सप्लाई, है ना. ये सब सारा चीज पहले ही प्लान हो जाता है. ओके. तो वो स्टैंडर्ड्स आप मीट करो तभी डॉक आपको अंदर लेगा. ओके. नाउ एक और चीज इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, प्लान्स. ओके. सो यू शुड बी अवेयर अबाउट द प्लान्स. आपके पास रिपेयर स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, अनएक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन तो है, बट वो आइटम कहाँ है, वो लोकेशन कहाँ है, इसको कैसे अप्रोच करेंगे या नहीं, है ना. फॉर दैट
यू हैव टू मेंटेन सेफ्टी, है ना। सेफ्टी कैसे मेंटेन करोगे विदाउट अ प्लान? तो हियर कम्स द प्लान. Okay, understood? Yes, sir. Okay, so that is the importance of plans. So what are the plans that you arrange and keep? So this is the list of few plans जो कि आप अरेंज करोगे, ठीक है। सबसे पहले तो जब आप ड्राई डॉकिंग प्लानिंग करते हैं तो देर इज अ डॉकिंग प्लान. देर इज 2 डॉकिंग प्लान गिवन फॉर एनी गिवन वेसल, दैट इज डॉकिंग प्लान 1 एंड डॉकिंग प्लान 2, ठीक है। क्यों देते हैं डॉकिंग प्लान 1 एंड डॉकिंग प्लान 2? Docking plan 1, docking plan 2. यस, क्यों दिया जाता है? जब ड्राई डॉक एक ही जाना है तो प्लान 2 क्यों है? एक बार में तो एक ही डॉक में जाएगा ना, Yes, sir. और हमेशा प्लान तो वही रहेगा. जहाज का कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज तो नहीं हो रहा है, तो प्लान 2 क्यों है? बाकी सारे प्लान एक है. पाइपलाइन का एक ही ड्राइंग होता है ना, जैसे आपका फ्यूल ऑयल सर्विस सिस्टम, उसका तो एक ही ड्राइंग है. ऑल्टरनेट ड्राइंग तो नहीं होता है, बिकॉज वो Right. सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना. Yes, sir. तो ड्राई डॉक का 2 प्लान क्यों है? ये है आपका एमएमडी में क्रॉस क्वेश्चन, ठीक है। तो द आंसर इज, देखो, अभी इमेजिन अ वेसल लाइक दिस, ठीक है। ये ऐसा है. अभी होता क्या है कि लेट से ये वेसल का, देर आर फ्रेम नंबर्स, राइट? इन द जीए प्लान यू हैव द फ्रेम नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द आफ. ऐसा ऐसा एक फ्रेम नंबर, तो जहां पर भी फ्रेम है वहां फ्रेम का एक नंबर रहेगा. ओके, आई एम जस्ट टेकिंग रैंडम नंबर्स जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन. चलो यहाँ से 0 होता है, और यहाँ पे 100 है, ठीक है, और यहाँ पे 150 है. ओके, 150. तो द ब्लॉक्स आर ऑलवेज प्लेस्ड अंडर द फ्रेम्स. रीजन? Sir, because this weight will act on the block. If we are Yes. not put under the frame, then otherwise the shell damage will be, the hull Yes, can be damaged. correct. That's So that is called buckling. buckling. So to avoid that, it is a very general common sense, ठीक है, इसके लिए इंस्टेंट बनने का जरूरत नहीं है. तो फ्रेम्स के अंदर में ब्लॉक डाल देते हैं. अभी मान लो यू हैव द जनरल अरेंजमेंट प्लान, फिर द ट्रांसफर्स प्लान, द डॉकिंग प्लान, शेल एक्सपेंशन प्लान, ये सब सब है, ठीक है। लेकिन डॉकिंग मेरे को 2 इसीलिए चाहिए. मान लो दिस ब्लॉक इज गोइंग, मैं इसको थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ. ओके, यहाँ पे एक फ्रेम है, ओके, यहाँ पे एक फ्रेम है, ठीक है। तो डॉकिंग प्लान में दिया है कि ये ब्लॉक को इधर बिठाना है, इतना मीटर्स पे ये ब्लॉक बिठाना है, ये हाइट का बिठाना है, ठीक है। तो इन्होंने बिठा दिया, ओके। नाउ कल को क्या हुआ, ये ड्राई डॉक करके तो निकल गया. जैसे ही ड्राई डॉक करके निकला, एक जहाज ने आपको इसको एग्जैक्टली इधर ही ठोका, ओके। सो द डैमेज इज हियर. कैन यू प्लेस अ ब्लॉक नाउ? No, sir. है ना। अगर आप एक ही डॉकिंग प्लान फॉलो करते हो, तो लेट से कि दूसरा फ्रेम यहाँ है, तो आप यहाँ यहाँ पे तो डाल दोगे, ठीक है, यहाँ पे मत डालो, ठीक है, यहाँ पे मत डालो. क्या होगा? दिस लेंथ इज टू मच, नो, इट विल स्टार्ट सैगिंग, है ना। Yes, sir. तो इट इज स्टिल अ रिस्क. तो इन दैट केस कितना अच्छा होता अगर हमारा एक ब्लॉक यहाँ डाल सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी सैगिंग हो सकता है. अब तुम बोलोगे कि यहाँ पर ब्लॉक डाल सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्या यहाँ पे फ्रेम है?
तभी तो डालोगे, है ना? Yes. हाँ. तो वो तुम्हारे ऑल्टरनेट डॉकिंग प्लान में बताएगा कि अपार्ट फ्रॉम नेग्लेक्टिंग दिस पर्टिकुलर आइटम, नेग्लेक्टिंग दिस पर्टिकुलर फ्रेम जहां पे डैमेज हुआ है, ठीक है, उसका नियर बाय कौन कौन से सेक्शन में आप डाल सकते हो, ठीक है। सो दिस बिकम्स द ऑल्टरनेट डॉकिंग प्लान। ये एक पर्पस है इसका, ठीक है। नाउ देयर इज ऑल्सो अ सेकेंड पर्पस। सेकेंड पर्पस क्या है? ऐसे ही 10 सेकंड सोच के कुछ भी बोलो यार, बोलो, सही बोलना जरूरी थोड़ी है। Second purpose. This is the docking plan to any kind of damages occurs. डैमेज तो हमने बता दिया, तो Hmm. दूसरा डॉकिंग, हाँ, दूसरा पर्पस क्या हो सकता है? मैं आपको एक क्लू देता हूँ, ठीक है। चलो ये जहाज का ओनर आप हो, ओके। आप इसको डॉक में तो बिठा दिए और किसी को बोले पेंट करने के लिए, तो सब जगह पेंट कर देगा। कहाँ पे पेंट नहीं आएगा? जहाँ ब्लॉक्स है। Blocks जहाँ है. जहाँ पे ब्लॉक्स है वहां पे तो पेंट नहीं आएगा। तो अगले 5 साल के लिए क्या करोगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब जहाज को यू नो वो गोवर्धन पर्वत की तरह उठा के तो वो नहीं कर सकते यार, बट तो सर अल्टरनेटिव ड्राई डॉक में हम लोग अल्टरनेटिव फ्रेम्स यूज करते हैं। हाँ। सो डॉकिंग प्लान 1 एंड डॉकिंग प्लान 2 उसका वही पर्पस है कि ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट यूज करते रहो, ठीक है। वो आपके ड्राई डॉक रिपोर्ट में मिल जाएगा कि कहाँ पे है, कहाँ पे लास्ट टाइम बैठा था। चूज दी ऑल्टरनेट प्लान, ठीक है। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके। सो ये सब कुछ आइटम्स हैं जो कि आपको कभी बुक में मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी खोजना पड़ेगा, ठीक है। आई विल सेंड यू अ बुक ऑन ड्राई डॉक। बहुत मोटा सा बुक है, बट इट इज़ अ पीडीएफ कॉपी। उसको पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है। वेन एवर यू हैव अ डाउट, यूज योर सर्च फंक्शन इन द पीडीएफ। कोई भी वर्ड अगर उसमें डालो, यू विल रीच टू दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ एंड यू कैन क्विकली फाइंड द आंसर, ठीक है। तो वी हैव टू बी स्मार्ट। हमें हार्ड वर्क करने का आदत नहीं है। ओके, गोइंग फर्दर। Okay, so there is a, you know how to find the materials in the uh, मैंने जो materials past में भेजा है, you know how to find that, राघव? सर आई डिडंट गॉट योर क्वेश्चन सर। ये जो प्रीवियस हमारे क्लासेस हैं, ठीक है, हम्म उसमें मैंने बहुत सारा मटेरियल्स भेजा था। हम्म पिछले 2-3 साल से मैं भेजते आ रहा हूँ, ठीक है। From the file. हाँ, तो आप क्या करोगे, यू कैन सी माई स्क्रीन राइट। तो आप जाओ टेलीग्राम में, ठीक है। टेलीग्राम में जाके ये ग्रुप पे क्लिक करो एंड यहाँ पे अ, यहाँ पे जाओ एंड लुक एट द फाइल्स, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल पोस्टेड है। जैसे ड्राई डॉक रिलेटेड है तो आप सीधा ड्राई डॉक टाइप करो। जितने मटेरियल्स मैंने भेजे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लोड होता जाएगा, ठीक है। ओके। सर वो लिंक, हमको लिंक पे जाना है और फाइल्स में जाना है राइट, जो वीडियो की लिंक आती है उस पे। नहीं नहीं, ये देखिए जो टेलीग्राम में आपका ग्रुप है ना, IPSRC 4BN6, हाँ हाँ सर। तो इसमें हाँ जाइए हाँ ओके ओके और इसमें फाइल्स में जाइए ठीक है सर। और यहाँ पे सारा माल मसाला है। अगर कुछ मिसिंग है, क्योंकि मैंने अपना फ़ोन बहुत बार इधर उधर चेंज किया है, तो यू नो माइट बी सम मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, बट आई कैन रिट्रीव एंड गिव इट टू यू। मेरे से पूछ लो, ठीक है। या नाइस, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं सारे कुछ स्टोर करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस,
एक और लाइब्रेरी है, देयर इज समथिंग कॉल्ड IPSRC लाइब्रेरी, है ना। हम्म, इसमें तो मैंने बहुत पहले पोस्ट किया था, बट बहुत कुछ पोस्ट किया था मैंने इस पे। सो इसमें भी फाइल्स में जाके, है ना, लिंक्स हैं, फाइल्स है, यू कैन रिट्रीव। सो दीज आर योर आइटम्स, ठीक है। तो कमिंग बैक, यहाँ पे सर्च करना इजी रहेगा, ठीक है। और आप क्या करो, कैलकाटा का जो ग्रुप है, ठीक है, उसमें आई डोंट नो इफ आई एम देयर आई विल ऐड यू। राघव, वेयर आर यू अपीयरिंग? बॉम्बे से, मुंबई। मुंबई है ना, तो आप मुंबई वाला ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। वो ग्रुप का नाम क्या है सर? वो ऐसे ही मुंबई ओरल्स ऐसा कुछ तो टाइप करो, आएगा। वैसे बहुत सर अंडबंड आएगा, बट मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन मुंबई नोएडा ओरल क्वेश्चंस। हाँ हाँ, समथिंग बट लाइक उसमें दैट। क्या है कि यू कैन नॉट टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन नॉट शेयर द क्वेश्चंस। अरे तो फोटो खींच लो। हाँ, वही मैंने किया है, लेकिन हाँ, whenever you are like if you want, I want to share that question list to you, then अच्छा one by one I have to select the pictures. अच्छा, So लेट्स ट्राई बिकॉज आई एम इन कैलकाटा क्लास 1 ओरल। रुको, मैं इसका स्क्रीनशॉट ट्राई you करता हूँ। can give me a WhatsApp number, I can send you the questions. ये देखो, ये मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। Which group is that? अच्छा, this is for Kolkata लेकिन ये क्लास 1 का है। class में. हम्म, एक मिनट। So many groups are allowing, but शायद कोई I am कोई अलाउ, finding जैसे the ये good, भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। wherever I am finding the good questions, na, they are not allowing you to take the screenshot and share. राइट। So I am taking the pictures, but sharing हम्म picture from WhatsApp is much easier because I can send in the हम्म ये इसमें शेयर करने दे रहा है। हियर यू कैन फॉरवर्ड, है ना, फॉरवर्ड करने दे रहा है, बट स्क्रीनशॉट नहीं लेने दे रहा Can you, sir, sorry to bother you, है। class हाँ 2 questions. So you'll get to find a group, orals, MMD, Mumbai, Noida. ये है ना, क्लास 2 ओरल क्वेश्चंस मुंबई MMD, Yeah. ये मिशन क्लास 2 मुंबई, ऐसा कैलकाटा का भी है। आई वाज देयर, आप बट उसको स्प्लिट करेंगे 1 मिनट, उसमें फिर हाँ, बहुत सारा अलग खुलता है कुछ, बिकॉज रुको, आई एम नॉट वेरी यूजर फ्रेंडली. हाँ हाँ, एक मिनट, ये है ना, इस ग्रुप का लिंक। इसमें आप स्क्रीनशॉट ट्राई करिए सर. नो कैन डू। यू कैन ओके, नॉट टेक इट. नहीं हो सकता इसका। ओके, तो इसका एवरी, लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है सर. हम्म, और मुझे इसका मिलेगा तो कौशिक को डाल दूंगा, कैलकाटा का। ओके, तो अभी आपका फिजिकल ये हो रहा है या कैसा चल रहा है ओरल? सर मेरा जाना मूवी पड़ता। अभी लास्ट टाइम मैंने बुक किया था, तो दैट हाँ। वाज ओरल ऑनलाइन. और मैं ओके। आज तक ऑनलाइन, उस दिन भी ये हुआ, लिंक मेरा कनेक्ट ही नहीं हो पाया. हम्म तो ओके। आई वाज, मेरे रिजल्ट में एब्सेंट ही लिखा है. आई ट्राइड अगेन, हम्म, बार बार लिंक मिस हो रहा था, अच्छा, सो इट वाज एब्सेंट. ओके, राइट। मेरी तरफ से मिस्टेक था, बट मेरा वाईफाई कनेक्शन वाज ओके. हाँ हाँ, बट वो हो नहीं पाया सर. ओके। ओके, तो हम कहाँ आ गए? ये तो कुछ और ही चलने लगा, तो लोड लाइन वगैरह सब में चला गया। ड्राई डॉक, ओके। सो मेनली 2 टाइप्स ऑफ ड्राई डॉक्स आर देयर, वन इज अ ड्राई डॉक ऑन रेल्स, ठीक है। तो ये आपका जो प्लानिंग व्लानिंग था वो, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नाउ आई विल शेयर अ फाइल, एक मिनट रुक जाओ। अ, वो फाइल को, है ना, थोड़ा स्टडी करते हैं बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट। एक मिनट, कहाँ गया वो फाइल?
ओके, मिल गया मेरे को। आई विल शेयर दिस वीडियो PDF विथ यू। स्ट्रेट एंड सिंपल, ज़्यादा कुछ दाव पेच नहीं है। ओके, सो अभी आप जहाज के साइड से क्या करना है ये तो आप समझ गए, ठीक है। सो व्हाट आई डू इज दैट आई गिव देम अ टेम्पलेट। जहाज को एक टेम्पलेट दे देता हूँ फॉर दी स्पेसिफिकेशंस दैट दे वांट टू एंटर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड दी ड्राई डॉक स्पेसिफिकेशन। ओके, एंड दैट इज डन। जितने आपके रिपेयर जॉब्स हैं, मेंटेनेंस जॉब्स है, उसमें एंटर करो, ठीक है। तो सेकेंड इंजीनियर का काम बेसिकली ड्राई डॉक स्पेसिफिकेशन बनाना होगा। ओके, बिकॉज यू नो द इंजन रूम। चीफ इंजीनियर तो लंच खा के सो जाता है, उसको आइडिया है नहीं, अपना स्टॉक मार्केट में शेयर्स काउंट करता रहता है। तो यू आर दी होल एंड सोल। तो भाई साहब, you need to assess this dry dock specification job very crucially, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है, तो एक ऐसा एक फॉर्म आएगा, ये देखो। How do I zoom? ठीक है, ऐसा एक फॉर्म आएगा। तो इसमें नेम ऑफ द वेसल, ये सैंपल फॉर्म है, ठीक है। तो ये नेम ऑफ द वेसल है, यहाँ पे आपको डेक पे करवाना है। सो ईच जॉब विल हैव स्पेसिफिकेशन, ठीक है। इन दिस पर्टिकुलर केस, this is the specification for this particular job, the photo is given। सिर्फ ये जॉब के लिए ये पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। ओके, इसमें क्या है, फैब्रिकेट ट्रंकिंग, सारा कुछ डिटेल आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू प्रोवाइड द ड्राइंग्स कि अगर मैनहोल जैसे इसको फिट करना है यहाँ पे, तो ये मैनहोल का क्या साइज रहेगा, कितने बोल्ट्स रहेंगे, है ना, क्या डायमेंशन रहेगा, क्या एरिया रहेगा, बाद में कैसा दिखना चाहिए, यहाँ पे कट करना पड़ेगा, व्हाट इज द लेंथ टू कट। तो ये सब मेजरमेंट्स आपको लेना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम द मेजरमेंट्स, ठीक है, द सुपरिटेंडेंट विल बी रियली हैप्पी विथ यू अगर आप ये सब टिक करते हो, ठीक है। सो जैसे इस पर्टिकुलर जॉब के लिए गैस फ्री सर्टिफिकेट चाहिए, बिकॉज इट इज ऑन टॉप ऑफ द टैंक। तो एक गैस फ्री सर्टिफिकेट चाहिए। लाइटिंग शायद नहीं चाहिए, बिकॉज द जॉब इज आउटसाइड। बट ही हैज नॉट कंसिडर्ड कि यार अगर रात को जॉब हुआ तो ही शुड हैव टिक्ड लाइटिंग ऑल्सो, ठीक है। और स्टेजिंग, स्टेजिंग चाहिए, बिकॉज अगर आप खड़ा नहीं होते हो एक हाइट पे तो हाउ विल यू वेल्ड, ठीक है। तो आपको लैडर चाहिए, स्टेजिंग चाहिए, क्लीनिंग चाहिए। सो ऑल दिस ऑप्शंस आर देयर, यू टिक अकॉर्डिंगली कि ये जॉब के लिए क्या क्या लगेगा। यू नो व्हाई दिस कॉलम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज होता क्या है, यहाँ पे व्हेन आई एम द सुपरिटेंडेंट, तो यहाँ पे मैं देखूंगा अच्छा इसको तो मैनहोल लगाना है यार, काटेगा लगा देगा, काम खत्म हो गया। बट इफ आई थिंक लाइक दैट, मैं बजट भी उतना ही करूंगा। इसके लिए, इस काम के लिए लेट से $3000 लगता है, ठीक है, एक मैन होल डालने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, बजट में $3000 मैन होल के नाम कुर्बान कर दूंगा। वहां जाके पता चलता है कि अरे नहीं, इसमें तो स्टेजिंग भी लगेगा, अरे लाइट भी चाहिए और जहाज के पास है नहीं, है ना। और एक गैस फ्री भी करना है, तो गैस फ्री के लिए टैंक क्लीनिंग करना है, टैंक क्लीनिंग के लिए आप शोर क्रू को बुलाओ, है ना। तो ये सब अनएक्सपेक्टेड जॉब में चला जाता है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. है ना। सो यू हैव टू वेरी डिलीजेंटली टिक ऑल दिस आइटम्स, क्योंकि इस पे मेरा बजट डिसाइड होता है। ये देखो, इसका जो कॉस्ट है ना, हो सकता है $3000 ही हो, लेकिन स्टेजिंग जो है ना, पर स्क्वायर फीट पे लगता है। वो जितना पर स्क्वायर फीट स्टेजिंग डालेगा, उतना पर स्क्वायर फीट वो काउंट करेगा। किसी किसी कंट्री में $100 पर स्क्वायर फीट है, किसी कंट्री में 350 है। ओके, सो इमेजिन अगर आप 10 स्क्वायर फीट का भी स्टेजिंग डाल रहे हो, तो मेरा कॉस्ट कितना हो गया, टोटल कॉस्ट? एनी आइडिया? पर स्क्वायर फीट कितना बोला था सर? पर स्क्वायर फुट 350। So 350 in some of the region and $100
per square feet in the हाँ, अगर आप 350 पकड़ो, minimal we can say. हाँ, तो बहुत अगर आप ज्यादा कॉस्ट है सर, थ्री स्टोरेजिंग का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हाँ, तो जॉब का कॉस्ट है $3000, स्टेजिंग का कॉस्ट है 3500, 3,000 10 साढ़े फुट 3,000 ऑलमोस्ट जॉब की प्राइस के बराबर है, उससे ज्यादा ही है। उससे ज्यादा है। तो इमेजिन मैं कहाँ से लाऊंगा ये पैसा, किसको बोलूंगा कि मेरे को एडिशनल बजट दो, क्योंकि मेरे को स्टेजिंग लगाना है ना। सो दीज आर दी कैच पॉइंट्स जहाँ पे डॉक अपने को पकड़ता है। अगर आप ऐसा स्पेसिफिकेशन अच्छा बनाओगे ना, तो क्या होगा, ये सब जितने चीज अरेंज करना है, हो सकता है एक स्टेजिंग ला के मैं 5 काम कर लूँ एक ही साथ में, तो मुझे कॉस्ट तो उतना ही देना पड़ा ना। 3.5 में 3 जॉब हो गए, 3,500 में 3 जॉब हो गए। अदरवाइज एक जॉब के लिए मैं 3,500 खर्चा करता, है ना। तो दीज काइंड ऑफ ट्रबल्स यू विल फेस। ठीक है, तो इसीलिए ये स्पेसिफिकेशन बहुत जरूरी है। ओके, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एज सेकेंड इंजीनियर इन द डॉक। आपका जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज द मेंटेनेंस एंड रिपेयर। ठीक है, इसमें जो आपका मॉड्यूल होगा, आपका क्या था ऑन बोर्ड, एमओस था, शिप मैनेजर था, शिपनेट था, क्या था? कोई तो पीएमएस मॉड्यूल होगा ना। सर शिपनेट 1, शिपनेट 2, MS2, रास्ट, हम्म, आई वर्कड ऑन दिस। हाँ, बहुत सारा चीज आता Last है। every time was different. यस यस। तो यहाँ पे ना एक डॉकिंग मॉड्यूल रहता है, जैसे मैंने आपको बोला, द रिपेयर द प्लान ड्राई डॉक प्लानिंग इज डन एज सुन एज द वेसल गेट्स आउट ऑफ द ड्राई डॉक। ठीक है, वहां से अगले ड्राई डॉक का प्लानिंग शुरू हो जाता है। यू डोंट वेट फॉर द लास्ट 6 मंथ्स जहाँ पे हम सारा कुछ डाल देंगे। अरे 6 मंथ्स, 4.5 साल में बहुत कुछ हुआ होगा, बहुत क्रू चेंज, बहुत सुपरिटेंडेंट चेंज, जहाज चेंज, ओनर चेंज, बहुत कुछ हो सकता है ना। तो इसलिए हम अगले ही दिन से डालना शुरू करते हैं कि भाई क्या होगा। ठीक है, तो ये सब तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। उसके पहले ना एक आइडियली एक शिप विजिट होता है, सुपरिटेंडेंट विजिट करता है, एंड देन ही देखता है कि भाई कहाँ कहाँ पे हाई फोकस रिक्वायर्ड है। ठीक है, एनीथिंग इफ द शिप स्टाफ हैज मिस्ड आउट। ओके, तो दिस इज वन ऑफ यू हु इज सिटिंग एंड फीलिंग। ओके, हाँ, एक चीज हमने नहीं देखा इज दैट कि अगर जहाज ड्राई डॉक जा रहा है, तो वो बेसिकली रिपेयर में आता है। न्यू रेगुलेशन से कुछ कंप्लाई करना है क्या, उसके लिए कुछ मॉडिफिकेशन करना है क्या, ठीक है, तो वो रिपेयर एंड मॉडिफिकेशन सेक्शन में कवर हो जाता है। ओके, तो ये चीज है। ओके, फिर उसके बाद में जब ये सब हो जाता है ना, जॉब स्पेसिफिकेशन, तब लास्ट 6 मंथ्स में आइडियली क्रू को ज्यादा टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि वो तो 5 साल पहले से भरता आ रहा है ना, है ना। ये रिपेयर स्पेसिफिक जॉब स्पेसिफिकेशन जो है, तो 5 साल पहले से वो भरता आ रहा है, तो उसके पास ऑलरेडी है। नहीं तो फिर रात का दिया जला के आपको करना पड़ेगा, विच इज नॉट गुड। तो जब ये हो जाता है, ठीक है, ये जॉब लिस्ट लेके व्हाट द सुपरिटेंडेंट डज इज ही सेंड्स दिस स्पेसिफिकेशन एंड द होल जॉब लिस्ट, इट इज लाइक ए ह्यूज फाइल। ठीक है, ये लेके भेजता है सारे डॉक्स को, जहाँ पे उसको ड्राई डॉक करना है। वहां से कोटेशन आता है कि भाई वो शिपयार्ड कितना लेगा, ये शिपयार्ड कितना लेगा, ये कितना लेगा, तो वो कोटेशन देते हैं। अब कोई है कि बहुत ज्यादा कोटेशन दे रहा है, बहुत कुछ कम कोटेशन दे रहा है, कुछ है मीडियम कोटेशन दे रहा है, सो विच इज द बेस्ट? कौन सा कोटेशन को मैं चूज करूं, सबसे कम वाला, सबसे ज्यादा वाला, मीडियम वाला? Sir, where all job will complete within the budgets. That will be. ये बात तो है। आइडियली अगर देखो, तो हमारा पर्पस वही है कि बजट के अंदर कंप्लीट कर लो। ठीक है, लेकिन कोई अगर Actually, sir, शिपयार्ड efficiency in how much time they are completing. जितना हम्म जितना टाइम हम डायलॉग में रुकेंगे उतना लॉस होगा, हम्म हमको पे करना पड़ेगा, तो इफिशियंसी इज आल्सो इम्पोर्टेंट।
some of the Hmm. dry docks, they don't allow to work in the night time also. Hmm. So daytime, nighttime shifts में काम चलता है तो we'll choose. Hmm. तो क्या होता है ना, द राइट आंसर फॉर दिस वन इज कि यू डोंट गो बाय द बजट हियर। एक एस्टिमेट तो आपको पता है, ठीक है, सबको पता रहता है कि भाई अगर ओनर ने मेरे को 100 रुपया दिया है ड्राई डॉक करवाने के लिए, एग्जैक्टली 100.0 रुपीज में तो मैं नहीं करवा सकता। इट कुड बी 99, इट कुड बी 105, हो सकता है ना, ठीक है। तो एक एस्टिमेट हम लेके चलते हैं ±5%, ठीक है। तो अगर मैं देखूंगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तीनों जहाज, तीनों डॉक तो आपको कोटेशन दे दिया, मतलब तीनों आदमी काम तो करके दे देगा, लेकिन क्वालिटी किसका बेटर, वो कैसे पता चलेगा? ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। कंपनी का क्या एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ, इंडस्ट्री में उसका क्या है। सो डॉक हम लोग पहले ही विजिट कर लेते हैं, देखते हैं कि भाई इसके पास इक्विपमेंट है या कहीं से बोरो करके लाएगा। बोरो करके लाएगा मतलब कहीं से रेंट पे लाएगा। जब मेरा जहाज है तब उसको रेंट पे नहीं मिला तो डिले होगा। सो ऑल दिस फैक्टर्स, मल्टीपल फैक्टर्स वी कंसिडर, और बोलते हैं कि भाई ठीक है, ये कर दो। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, सबसे महंगे वाले को पूछता हूँ कि भाई साहब, ये तुम इतना कॉस्ट क्यों चार्ज कर रहे हो, ठीक है। तो वो बोलता है हमारा क्वालिटी बेस्ट है। अगर क्वालिटी मेरे को एक्चुअली में पसंद है, देन आई स्टार्ट बार्गेनिंग विथ हिम। मेरा मोटिव क्या रहता है, सबसे महंगे वाले को मीडियम रेंज में लेके आ जाओ, ठीक है। एंड देन वो मीडियम रेंज में लेके आते हैं, फिर इस जहाज को वहां घुसा देते हैं, है ना। सो दीज आर दी ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका ड्राई डॉक प्लानिंग हो गया, ठीक है। उसके अलावा क्या कंसिडर करना है, कौन से महीने में आपका ये हो रहा है, ड्राई डॉक पड़ रहा है। इफ इट इज विंटर, इज इट अ रेनी सीजन? रेनी सीजन में तो आप ऑब्वियसली सिंगापुर में डॉक नहीं करोगे, पेंट कैसे करोगे, है ना। जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी है वहाँ नहीं करोगे, कैसे काम चलेगा, पेंट ही नहीं कर पाओगे। जहाँ पे बहुत विंडी है, तूफान चल रहा है, दुबई उबई में सैंड स्टॉर्म चल रहा है, वहाँ नहीं करोगे, है ना। सो ऑल दिस फैक्टर्स आर कंसिडर्ड। दूसरा, जहाज कहाँ पे अपना वॉयज एंड कर रहा है ना। तो इफ द जहाज हैज टू ट्रैवल, बर्न फ्यूल एंड ट्रैवल ऑल द वे टू अ ड्राई डॉक विच इज फ्रॉम चाइना टू यूरोप, वो डॉकिंग का तो आधा बजट तेल में आप जला दिए। तो आई विल प्रिफर डूइंग इट इन चाइना, जहाँ पे उसका वॉयज कंप्लीट हो रहा है, ओके। सो वो सब चीज़ है, तो ऑफ फायर टाइम बेसिकली देख के डिसाइड किया जाता है। सो दीज आर दी कंसिडरिंग फैक्टर्स फॉर द डॉक, ठीक है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. बोरिंग लग रहा है? No. ये सब आपको उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बस एक जनरल नॉलेज के लिए है। Sir, there on the oral question in here, they are asking that preparation for planning for dry dock. हाँ, That is, वो इसमें है ना, मैं आपको भेजता हूँ, oh, sir. ठीक है। ये पूरा मैं आपको भेजूंगा, तो इसमें आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो बेसिकली व्हाट यू हैव टू स्टडी, ये जो ये जो सब टॉपिक्स हैं, इट इज ईच सब टॉपिक आप उसको सीक्वेंस में बना लो कि पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, और इधर क्या होगा, ठीक है। तो इट विल बिकम लाइक अ फ्लो चार्ट, तो एक के बाद एक। अब जैसे गेटिंग रेडी टू सेल, इसमें आप तो बोल ही सकते हो ना मन में कहानी बना के कि सेलिंग टाइम में एज ए सेकंड इंजीनियर मैं क्या क्या देखूंगा, है ना। तो इसमें अगर आप पूरा, आपको ये पूरा जो पैराग्राफ है ये याद करने का जरूरत भी नहीं, ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज गेटिंग रेडी टू सेल। आई एम जस्ट सेइंग आइडिया ऑफ स्टडी। अब गेटिंग रेडी टू सेल है, उसके वो टॉपिक के अंदर में आप जो भी बोलोगे वो एक्सेप्ट ही करेगा, सीधा सा बात है। सो व्हाट ही वांट्स टू सी कि आपका अप्रोच सही है या नहीं। सी, एमएमडी इज नॉट अबाउट गिविंग दी क्वेश्चंस आंसर्स ऑन द डॉट, दैट इज नॉट एमएमडी। एमएमडी है आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका अप्रोच, ठीक है, आपका सिचुएशन हैंडलिंग, आपका लीडरशिप। ये सब चीज में अगर लड़का बहुत अच्छा आंसर दे रहा है बट वो देखने में बकरी टाइप दिख रहा है यार, his body language is not positive, तो in spite of having that knowledge, वो कैसे टीम को लीड करेगा, कैसे इमरजेंसीज फेस करेगा, यू टेल मी, है ना। इज दैट करेक्ट?
आपने देखा होगा अपने क्लास में जो सबसे ब्रिलियंट है, एंड में वो क्या करता है, जाके बैंक अकाउंट में बैठ जाता है, बैंकिंग में चला जाता है। मेरे बैच में है, पूरा मरीन इंजीनियरिंग करके एक सेलिंग करके टाइल्स कंपनी में घुस गया। तो भाई आपने किया ही क्यों, आपने स्पेशलाइजेशन कर लिया होता टाइल्स में, करेक्ट। तो भाई ही अभी रियलाइज्ड कि अभी तो सब लड़का सब तो कई सारे लड़का से एमएलएम में घुस रहा है। एमएलएम क्या है? मल्टी लेवल बिजनेस विवेक बिंद्रा। देखो दो अपने कोर से कभी मत हटो, अपने कोर से ना कभी मत हटो, क्योंकि गिरोगे ना तो आपका कोर ही आपको संभालता है। बात तो सही है सर, क्योंकि एक हम्म एग्जांपल है हमारे सामने। तो हम्म उसका क्लास 2 का सीओसी है। हम्म उसको लगा कि वो बहुत पढ़ लिया तो यूपीएससी का तैयारी करने चला गया। सीओसी हम्म, भी एक्सपायर हो गया विदाउट सेलिंग। लास्ट टाइम हाँ वो उसे मिला था, कोर्स करने आया था, बोलता क्या सीओसी एक्सपायर हो गया। तो एमएमडी हाँ बोला इधर कॉन्डक्ट द ओरल, अदरवाइज यू जस्ट डू द कोर्सेज अगेन। हम्म। वो भी उसका पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा था, बोलता है हम लोग सोचना ही गलत कर दिया था। तो वही। हम्म वही वही। तो देखो, अगर इस लाइन में घुस गए हो, क्लास 2 इज नॉट द एंड। आप जाके सबसे पहले चीफ इंजीनियर का एक्सपीरियंस ले लो, क्योंकि उसके बाद में अचीव करने को कुछ है नहीं, ठीक है। एंड एवरी टॉम डिक एंड हैरी बिकम्स चीफ इंजीनियर, ठीक है। इसमें स्मार्ट चीफ इंजीनियर कौन है? अपने को वो चाहिए, ठीक है, जो स्मार्टली थोड़ा संभाल ले। सो ही हैंडल्स द सिचुएशन वेल। एमएमडी में वही चाहिए कि तुम सिचुएशन हैंडल कर पा रहे हो क्या। सिचुएशन हैंडल करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक अच्छा एटीट्यूड, एक अच्छा अप्रोच, एक पॉजिटिव लीडरशिप वाला बॉडी लैंग्वेज। यूपीएससी में भी यही चाहिए, ठीक है। ओके, सो मैं ये फाइल आपको भेजता हूँ, एंड देन वी विल, ये ड्राई डॉक का एक्चुअली जनरल प्लानिंग है। मैं आपको प्लानिंग, ड्राई डॉक प्लानिंग एंड रिपेयर के इसमें आपको मैं 2-3 फाइल भेजता हूँ, ठीक है। जो आपको इजी लगे समझने में वही पढ़ो, बाकी दो छोड़ दो, आपको जो इजी लगे, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग। दूसरा, इन द कमिंग क्लास व्हाट वी विल डिस्कस, हम लोग स्टर्न ट्यूब शुरू करेंगे, एंड प्रोबेबली 1 घंटे में तो नहीं खत्म हो पाएगा अनलेस यू हैव डन दैट टॉपिक अर्लियर, लेकिन हम लोग इसको 1.5 घंटे तक ट्राई करेंगे खत्म कर देने का। सो लेट्स लेट्स कीप 1.5 घंटा क्लास टुमारो। तो कल ओरल्स नहीं होगा बिकॉज अभी हमने जस्ट क्लास शुरू किया है, ठीक है। तो ज़्यादा टॉपिक तो हुआ नहीं, कल स्टर्न ट्यूब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके सर। सर कल संडे है, यू विल बी टेकिंग द क्लासेस? यस आई विल बी, आई हैव कमिटेड। Okay, fine, sir. And you said you will give us some topic to. हाँ हाँ, तो आई वॉज थिंकिंग दिस मॉर्निंग, ठीक है। तो आई थिंक वन ऑफ यू शुड टेक अ टॉपिक विच इज कॉल्ड वाइब्रेशन, Oh my ठीक God. है। ओके सर। मुझे मुझे पता था ओ माय गॉड ही आएगा, बट इसीलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि वहां जाके ये ओ माय गॉड ना हो जाए। ओके सर, नो प्रॉब्लम भाई। हाँ, तो वाइब्रेशन आप ले लो कौशिक, ठीक है। दूसरा, एक जो टॉपिक है, ठीक है, आप ले लो साधु मैं, Refrigeration. रेफ्रिजरेशन आपको डाउट है क्या? Hmm. Ah, remind. आप जरा सजेस्ट। आप एयर कंडीशनिंग ले लो। एयर कंडीशन। एयर कंडीशनिंग ले लो, ठीक है। तो दोनों तो दोनों टॉपिक पे हम दोनों को प्रिपेयर करना है, राइट? हाँ, सो वाइब्रेशन कौशिक प्रिपेयर करेगा, एंड यू विल प्रिपेयर एयर कंडीशनिंग, नॉट रेफ्रिजरेशन, बिकॉज दे ओके आर सर। डिफरेंट। हाँ, और मैं ये पूछने भी वाला हूँ ये दोनों में कि difference है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैंने अलग अलग क्यों किया, ठीक है। वो आपका क्लू ही वही मजा है। आया। आपको क्या खोज के लाना है, ये आपका क्लू है कि मैंने ये टॉपिक स्प्लिट मैंने कर कहा रेफ्रिजरेशन, आपने कहा एयर कंडीशन, तभी मैं समझ गया कि ये टफ होने दिया। वाला नहीं नहीं, है। एयर कंडीशनिंग बहुत ही सिंपल है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है बहुत जल्दी। बट उसमें क्या है ना, कि देखो पूरा साइकिल तो आप जानते हो, ठीक है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप, देर देर आर कंफ्यूजन अमंग द स्टूडेंट्स चार्ट वार्ट को लेके, रेफ्रिजरेंट को लेके। मूल्य मूल्य सर।
हाँ, मोलियर चार्ट, वो क्या सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, वो क्या क्या बोलता है, बहुत कुछ बोलता है। डी सुपर सबकूल और हाँ, We will तो have ये that सब। information. हाँ ड्यू पॉइंट है। हाँ, तो अगले संडे को आके कंडेंसर कंप्रेसर मत बोलना। सीधे लेट्स गो टू द पॉइंट। ठीक है, कि इसका प्रिंसिपल क्या है ऑपरेट करने का। सर तो वाइब्रेशंस आप पहले कवर करेंगे, यू विल स्टार्ट नहीं आप, नहीं नहीं, ये दोनों टॉपिक आप लोग प्रिपेयर करके आओ और आप अपने हिसाब से प्रेजेंट करो। ठीक है, मैं क्या करूंगा, और इस दो टॉपिक को मैं क्लास ले लूंगा, तब क्या होगा, आपका सेकंड रिवीजन टाइप हो जाएगा वो। ठीक है सर। ठीक है। और आप तो फाइल शेयर करेंगे जो आपने आज बताया। मैं आई एम मिस द ऑलमोस्ट 70 हाँ, क्लास। बेसिकली मैं एक ही फाइल जो है, एक ये वाला, एक यूट्यूब का लिंक है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ड्राई डॉक। ठीक है, तो वो चीज़ है, बस मैंने वो वीडियो डाला, तो वो लिंक और ये फाइल ही मैंने दिखाया है। अदरवाइज अगर आप रिकॉर्डिंग रिट्रीव करोगे ना, तो देखोगे कि हम लोग क्या क्या मतलब सर वीडियो डिस्कस कर एक्चुअली रहे हैं। 2 या 3 दिन बाद डाले। क्या हुआ? वीडियो जो है ना दिलीप सर, वो 2 या 3 दिन बाद डालते हैं। अच्छा, एक काम करो ना, कल से एक काम करो, आई टेल यू क्विक ट्रिक। मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। ठीक है, सो आप वीडियो रिकॉर्ड करो, तो ये आपके सिस्टम में डायरेक्टली रिकॉर्ड होगा। बट इफ आई एम होस्ट, कैन यू शेयर द फाइल्स एंड यस यस, सब हो जाएगा। ठीक है। थैंक्स अ लॉट सर। हम्म, तो एटलीस्ट वो फास्टर वे होगा ना। सर एक और आपसे अच्छा कौन मिलेगा पूछने के लिए कि मुझे नवल आर्किटेक्चर के रिटर्न के लिए सबसे अच्छा हम्म गाइड कौन कर सकता है? बिकॉज न्यूमेरिकल्स में मैं जा नहीं पा रहा हूँ। आई एम ट्राइंग अलॉट, बट जब भी रिटर्न देने जाता हूँ तो आई एम हम्म स्किपिंग, कर नहीं पा रहा तो हूँ। यार, मुझे आंसर याद है, बट हाउ टू रीच अप टू दैट आंसर ऑल्सो है। यस यस, ओके ओके। आंसर याद मत करो, क्योंकि बीच और में है फिगर चेंज ये, कर दिया ना। तो 4 टन का 40 टन डाल दिया, तो आंसर गलत हो जाएगा फिर। तो वेदर देयर आर द क्लासेस, आई शुड टेक द क्लासेस। यार, क्लासेस के लिए ना एक विनय सर है। सो ही हैज बीन टीचिंग सिंस, जहां तक मेरे को याद है यार, 3 साल से तो वो नेवल आर का क्लास पढ़ा रहे हैं, एंड ही इज कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन दी क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है। रिटर्न्स। हाँ, तो न्यूमेरिकल्स वगैरह भी वो करवाते हैं। तो वो अपने एम्स में हाँ, एस। एम्स में, एम्स में, ये दिलीप को पूछ के देखो। सो ही विल गाइड यू। थैंक्स अ ठीक है, तो विनय सर हैं। आई एम नॉट क्वाइट इन टच विथ हिम, मैं खुद ही 2 महीने से गायब था ठीक है, डॉकिंग मैं के दिलीप लिए। सर से कांटेक्ट करता हूँ सर। हम्म। ठीक है। और कोई इंस्टीट्यूशन सर, इफ यू वांट टू रिकमेंड, इफ यू कैन, आई मीन, क्या है? जैसे HITC वगैरह है। HATC यार देखो, पहले ना हम एक काम करते हैं, रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, आई टेल यू व्हाट हैज हैपेंड। कैसे होता है यार, रिकॉर्डिंग बंद है। HATC अच्छा है। Because I need a clear guidance sir, because it's a peak time for me. और देखो, HATC अच्छा है, मैं गलत नहीं बोलूंगा। ठीक है। 1 मिनट। क्योंकि ये सब चीज है ना, बहुत वायरल हो जाता है बाद में कि भाई इसने ऐसा बोल दिया, जबकि मैं अच्छा ही बोलूंगा तो भी खराब ही हो जाएगा बाद में। ये तो सही, ठीक है सो का। हैं? इसलिए मैंने नॉन डिप्लोमेटिक, मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन पूछना सीख नहीं है। बट उसका नाम ना लिए मैं आपको बता रहा हूँ, हिज इट्स रिव्यू इज गुड, क्योंकि सर नहीं, some of my ऑनेस्टली। friends, हाँ। 2 of my friends are attending this AMs, and there's a few 2 3 friends previous year they attend हम्म this class, those classes, and he हम्म told me that both of are good. You can just attend your whatever you studied in college time, and this it will recall. हम्म Ultimately, on my point of view, sir, we need to just recall our things. So हम्म either that institution or either this institution, wherever is it. But it is less expensive, that is a little bit expensive. HIT से अह, अब मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट। सर रिकॉर्डिंग यार देते हैं सर। ये
ये किधर है यार रिकॉर्डिंग वाला बटन, मैं देख ही नहीं पा I रहा think you cannot control it. It's from your हूँ। side. नहीं नहीं, आई हैव डन इट बिफोर इन द पास्ट। देखो मैं ना आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कैसे आप मेरा रिकॉर्डिंग जो है ये कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, एक मिनट। ओके, तो ये है, अरे यार ये कहाँ चला गया? हाँ, सच डम स्टफ यार। अब तो Sir, मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं देख पा if you can, I won't disturb you much. If you can share me your number, you can रहा। tell me clearly. That will be much better, sir. ठीक है। I won't, ये I won't bother you regarding the हाँ, questions and all. 966 Yes, sir. 3170 3170. 189, ये इंडिया का नंबर है। Okay, sir. ये WhatsApp नंबर है सर? ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर नॉर्मल कॉल नहीं लगेगा। ठीक है सर। हम्म, तो मैं इस पे आपको वो कर देता हूँ, आपको जो भी गाइडेंस देना दे सकते हैं, बिकॉज मेरे लिए बहुत हाई टाइम है सर। नहीं नहीं ठीक है। थैंक्स अ लॉट सर। बस मैं अगर ट्रैवल कर रहा हूँ तो आंसर नहीं दे पाऊंगा, या फिर ऑफिस में हूँ तो शायद नहीं दे पाऊँ, आई विल बट बी, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं दे देता हूँ। मैं वेट करूंगा सर आपके रिप्लाई का। हाँ, वेरी ठीक वेल, है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक्स यार, चलो सो बाय। काइंड, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।